مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا قادر مطلب ہوتا ہے جو ہر چیز کر سکتا ہے اور کوئی روک نہیں سکتا، کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کو بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز کو بگاڑ سکتا ہے، ہر چیز کو ختم کر سکتا ہے اور اس کو ری انوینٹ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم خداوند کی امیج میں بنے ہیں اور then we can be recreated۔ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی سوچتے ہیں، میری ایک کرسچن لڑکے سے بات ہوئی تھی ایک دفعہ، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کلام میں مجھے یہ نہیں پتا، کلام کی نالج بھی لوگوں کو کم ہوتی ہے، سمجھتے ہیں سارا کلام آتا ہے، کلام کہتے ہیں کلام مجھے نہیں پتا۔ ایک دفعہ ابراہیم کا شاید ذکر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے ہمیں بنایا ہے لیکن خداوند کو بھی ہماری ضرورت ہے، خداوند کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ If we are created, we can be recreated۔ خداوند ہمیں نوح کے زمانے کی طرح ختم بھی کر سکتے ہیں اور وہ پھر سے اپنی اولاد پیدا کر سکتے ہیں، لیکن خداوند نے ہمیں بنایا اس لیے تاکہ ہم ابلیس کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن خداوند اس وقت ہمارے لیے الوہیم تھا۔ پھر خداوند نے دیکھا کہ یہ گرتے جا رہے ہیں، یہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، I have to take charge۔ پھر خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا اور اس کو کیا کیا؟ اس کو وعدے کا فرزند بنایا، اس کو قوم کا باپ بنایا، اور تب خداوند اپنے باپ کا کریکٹر آہستہ میں دکھانا شروع کیا۔ جب موسیٰ کی طرف خداوند نے دکھایا تو موسیٰ کو خداوند نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا موسیٰ کو؟ کہ میں تمہارا خدا ہوں، I am the judge۔ تب بھی خداوند باپ نہیں تھا ہمارا، خداوند ہمارے لیے جج تھا، he was the judge for us۔ کیونکہ اس وقت فرعون اپنے آپ کو جج سمجھتا تھا، فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ خدا میں اور باپ میں ہم اکثر غلطی کرتے ہیں۔ خدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا باپ ہے، خدا باپ نہیں ہے۔ کسی بھی قوم کا خدا باپ نہیں ہے۔ خدا ہے جس کے سامنے جھکنا ہوتا ہے، جس کے سامنے گرنا ہوتا ہے، جس کے ہم نے اپنے سارے پریشانیوں کو ڈالتے کہ شاید اس کو ہماری بات کو پسند آئے تو وہ ہماری بات کو سنے اور اس پر اس کو کان لگائے اور ہمارے لیے یہ کام کرے۔ خدا کا مطلب ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، مگر خدا نے پھر داؤد کو تیار کیا کہ یہ اس طرح کا میرا فادر کا فرزند بنے گا، کیونکہ یہ میری تعریف اور تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ ہم کیوں ورشپ میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا باپ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف اور تعظیم میں وقت گزاریں، اور جب اس کا دل خوش ہوتا ہے تب ہمیں چیزیں دیتا ہے، وہ خدا ہمیں دیتا ہے۔ لیکن داؤد سے خدا نے کہا کہ یہ میری قوم کا فرزند بنے گا، اس سے میری نسل آئے گی۔ اور جب یسوع مسیح آیا اس کی وجہ سے ہم نے اسے باپ یعنی ابا کہنے کا اس نے ہمیں حق بخشا۔ تب جو یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ بیٹا کہلاتا ہے، نہ تو اس سے پہلے، نہ تو اس کے نام کے بغیر، نہ تو جو روح میں رہتے ہیں وہ، نہ تو جو باپ کے اندر ہے وہ، نہ تو اسرائیل قوم، نہ تو یہ اکثر ہم لوگ کرتے ہیں کہ روح کو زیادہ کرتے ہیں اور بیٹے کی ویلیو کھو دیتے ہیں۔ باپ بیٹا روح قدس ہمارا باپ تب بنتا ہے جب بیٹے کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ مڈل کی ویری امپورٹنٹ۔ ایمین ایمین ہاللویا۔ خداوند خدا ہمارا باپ ہے۔ اس نے جب آدم اور حوا کے نیچے آیا، بہت زیادہ دوری بنایا آدم ذات کو جب بنایا، خداوند نے اس کو کس کے شبیہ میں بنایا؟ اپنی شبیہ پر۔ He gave him authority دی کس پر؟ ہر چیز پر، زمین پر اتھارٹی دی، زمین کے کاموں میں۔ ایک جانور کا نام رکھا کس نے؟ آدم نے۔ خداوند نے اتنی اتھارٹی دی ایک آدمی کے ہاتھوں میں، ایک آدمی کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، لیکن خداوند نے کیا کہا ہے کہ آدمی اتھارٹی میں تو رہے، مگر پہلا کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ وہ اتھارٹی میں تو رہے مگر یسوع کی امیج میں رہے، یسوع کی طرح ہے جو اپنی چرچ سے محبت کرتا ہے، محبت میں، پیار میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ بچوں کے لیے بیوی سے love her and do not be harsh with her۔ بیوی سے محبت کرنی تو ہے مگر ایک لمٹ میں، اتھارٹی بھی دکھانی ہے۔ ورڈ آخری ہسبینڈ کا ہونا چاہیے گھر میں، مگر ناٹ ود اتھارٹی کہ میں گھر کا ڈان ہوں، لیکن with wisdom and knowledge and the authority that God had given him۔ Amen۔ ابھی ہم کلام میں سے نکالتے ہیں، میں کلام کی باتیں آپ کے ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ بیٹوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کیا بات ہے۔ میرے ساتھ نکالیں گے دوسرا سیموئیل 7 خداوند نے جو کووننٹ کیا تھا، جو کووننٹ خداوند نے داؤد کے ساتھ کیا تھا، اس کے گھرانے کے ساتھ کیوں، کیا خاص بات کی تھی داؤد میں؟ وہ گناہگار بھی تھا، اس نے مرڈر بھی کیا، اس نے ایڈلٹری بھی کی، بڑے آسان سے بولتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیے، مگر خداوند نے پھر بھی اس سے وعدہ رکھا۔ اس مطلب خداوند ہمارے گناہوں کو بھول جاتا ہے، خداوند گناہوں کو بھولتا نہیں ہے۔ داؤد ایک باپ تھا جس کی اولاد خداوند نے لے لی، کیوں؟ کیونکہ اس نے جب گناہ کیا وہ جھکا، اس نے روزہ رکھا 3 دن کا، ٹاٹ اوڑا اور وہ خداوند کے ذریعے میں جھکا رہا جب تک خداوند نے اسے معاف نہیں کیا۔ کبھی کبھی خداوند گناہ پڑھتے ہیں تب خداوند معاف تو کر
बढ़ता है मगर साथ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे. We see the consequences. Amen. अब मैं इन वादों के बारे में बात करूंगा थोड़ी थोड़ी. ये एग्जाम्पल मैं जरूर देना चाहूंगा क्योंकि फादर्स डे डैडी आएंगे, लेकिन आई वांट टू गिव दिस एग्जाम्पल. जहां जहां कलाम में बरकतें देखते हैं, अंबिया की जहां जहां बरकतें देखते हैं, खुदा ने उनको वादे जो भी किए हैं वो ये किए हैं कि तुम्हारी नस्लों पे मैं बरकत डालूंगा. तुम्हें मैं जहां वहां लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है. तुम्हें वहां लेके जाऊंगा जहां पे प्लांटेशन है, तुम्हें कुछ खोदने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं. वहां लेके जाऊंगा जहां पर खुद ब खुद ही देयर आर सिस्टर्स, देयर आर वेल्स, जो तुम्हें खोदने की जरूरत नहीं है. वेल्स तो I will give you water, I will give you food, I will give you everything. लेकिन करना क्या है? You have to stay and keep your kids under the law. Amen. क्या डैडी का मुझे आई थिंक सबको पता है, लेकिन मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि हमें भी एज अ चाइल्ड, एज अ सन, मुझे ये बातें याद होनी चाहिए. क्योंकि खुदा बचपन में जब डैडी बहुत बिजी थे, उनकी लाइफ बिजी थी, उनका बिजनेस था, he had everything that he ever wanted. डैडी इतने सेट थे कि he wanted to he could. वो 40 साल में रिटायर होना चाहते, उनका प्लान था ये हमेशा से. मैं 40 साल पे रिटायर हो जाऊंगा and then I'm going to enjoy whatever I have. उन्होंने बहुत मेहनत की. Everything was self-built. और डैडी के हमारे दादा के he had a job. बिजनेस में हमारी फैमिली में से ऐसा कुछ कोई नहीं था. डैडी ने काम किया, मेहनत की, रात दिन की, यहाँ किया, वहाँ किया, हर चीज करके डैडी ने फाइनली जब बिल्डर बने, he found himself safe and comfortable enough, जहाँ हम लोग ने हर चीज देखी, हर चीज मिली, मांगे बगैर मिली. बल्कि कभी-कभी हमसे गलती भी हो जाती है, कभी डैडी हमें शो भी नहीं करते कि इतना बड़ा नुकसान मेरा कर दिया है. मर्सिडीज जब डैडी ली थी गाड़ी, मैं और भाई जा रहे थे, नैना मॉल की ट्यूशन थी, उनको छोड़कर आंटी असमी घर में जब छोड़ते थे उनको, तो हम लोग छोड़कर आ रहे थे. तो रास्ते में भाई डैडी की मर्सिडीज ली थी, जिससे घर खरीदा उन्हीं से ली थी मर्सिडीज, कृष्ण की मर्सिडीज. तो डैडी के बड़े चार्ज डैडी ने उसको नए तौर पर बनाया था. पुरानी गाड़ी थी मगर नए तौर पर डैडी ने उसको दोबारा से बनाया था कि वो एक एंटीक कार थी. डैडी ने बड़े शौक से उसकी आउटसाइड, इनसाइड, इंजन, लाइट, इवन उसके मिरर्स भी एक चीज डैडी ने नए तौर पर बनाई. जो बल्कि मेरा भाई राइड पे निकले, और जो होता है डिफेंस की रोडें बड़ी हैं, राइड करनी है, गाड़ी चला रहे हैं, तो हम लोग गाड़ी चला रहे थे और मस्ती के मेरा भाई कहता मैं जिगजैग चलाता हूँ. मैंने कहा हमें बड़ा मजा आएगा, चलाओ. हम कर रहे, बड़ा मजा आया, हमने एंजॉय किया. लेकिन हुआ क्या, जब बने पे गाड़ी का टायर लगा तो गाड़ी पूरी रोड पर स्पिन हुई और किसी के घर में जाकर जो आग लगी, घर के अंदर उनका पूरा लॉन खराब हो. किसी घर में आती वो घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो कोई नहीं था वहां पे. लोग आगे शोर मचाते, ये लड़के बड़ा फ्रैंक हो रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, एक आदमी कार पीछे पड़ गए. ये लड़के बड़ा फ्रैंक हो रहे थे, हमने देखा इतनी गलती नहीं की है, इन्हीं की गलती. हमने गाड़ी वहीं छोड़ी, हम लोग पैदल, घर करीब था मस्जिद की बात, तो वहीं से पैदल चले गए. मिट्टी हमारी लगी हुई है, कोने में मिट्टी. देखिए खुदा का इतना शुक्र है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एक खरोच किसी को नहीं है, हम दोनों को नहीं है. ये भी माँ बाप की दुआएं, खुदा का शुक्र है. हम लोग घर गए, मिट्टी घर पहुंचे. मैंने पता नहीं क्या पहना हुआ था, कपड़े, क्यों गाड़ी में होता है तो यही होता है कि क्या गंदे बंदे कपड़े मैंने पहने हुए थे. भाई नहीं चल रहे आ रहे, हम लोग घर पहुंचे, खुदा का शुक्र है. तो मामा कहती क्या हुआ है, क्या बाइबल पढ़ी थी, मामा देखा, मामा कहती क्या हुआ, मिट्टी क्या हुआ. हम कहते बस बच गए मामा, आज बच गए, क्या हुआ, बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ. लेकिन शुक्र है खुदा का, चल ठीक है जो भी. मामा बड़ा रोई, बड़ा परेशान हुई. जब डैडी घर आए और डैडी को पता चला न्यूज से, डैडी गाड़ी देखने गए, फिर घर आए. भाई घर में पीना पड़ गया, डैडी मुझे डांटेगी, मुझे मारेगी, बड़ा नहीं क्या होगा. लेकिन फिर भी डैडी आए, डैडी ने सब कुछ भुलाकर भाई को गले लगाया कि चलो मेरे दोनों बेटे थे, वो जरूरत सही सलामत कराए. I think that's the love that God has for us. That's the image of God that should remain in the household. ये है इमेज खुदा की, ये है मर्सी, the compassion that Christ has for us. ये है मर्सी जो खुदावंद अपने माँ बाप पे डालता है. क्यों लोग कहते हैं कि माँ बाप बन के सारी लाइफ चेंज होती है, सारी सोचें बदल जाती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? क्योंकि खुदा आप में डालते हैं, क्योंकि आप खुदावंद को अपने घर में प्रायोरिटी देते हैं. जब इसको, इस ट्रिनिटी को, हम ट्रिनिटी के पीछे क्यों कहते हैं बाप बेटा रूह कुदस, क्योंकि ये ट्रिनिटी घर में बहुत जरूरी है. जब मसीह सर आपके घर का बनता है, तब आप मसीह को कहते हैं खुदावंद यू टेक ओवर, आई एम गोइंग टू स्टेप असाइड, आई विल टेक द बैक सीट. तू मेरी फैमिली को लेके चल, तू मेरे बच्चों को लेके चल. फिर ये जो सारे वादे तूने दाऊद से कभी किए थे, जो सारे वादे तूने इब्राहिम से कभी किए थे, जो तूने वादे का फैसला सुलेमान को बनाया था, जो यीशु को तूने लिए कुर्बान किया था, वो मेरी जिंदगी में उसका नाम जला पाए, क्योंकि यीशु के नाम को ही जला देना. तो ये मुझे बात हमेशा याद आती कि इतना बड़ा एक्सीडेंट के बावजूद डैडी ने हमें गले लगाया, हमें तो प्यार किया दोनों को. और हमेशा कहते यार नहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, कोई बात नहीं, कुछ भी हुआ, वो गाड़ी बल्कि हमने दोबारा नहीं बनवाई, दोबारा ने कभी नहीं बनाई गाड़ी, क्योंकि बहुत टोटल हो चुकी थी, बिल्कुल नुकसान के ऊपर नुकसान हुआ, क्योंकि खरीदी हुई गाड़ी पे नुकसान हुआ. तो डैडी ने हमेशा बचपन से हमें परिश्रमियां हैं, फिर वो है, बिजी हैं, रैलीज में लेके जा रहे हैं.
रिंग रोड में क्राइस्ट चर्च की रैली होती है, क्राइस्ट चर्च का नाम था ना, क्राइस्ट चर्च की रैली होती, वहां पर दोपहर में लेके जाते थे, छोड़ते थे, चर्च हमने बकायदा जाते। वी न्यू द प्रायोरिटी कि खुदावंद ही प्रायोरिटी है। मामा बेशक रूम में ज्यादा थी, डैडी का बैकग्राउंड इतना ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं था, मगर वो कदर जानते थे, वो जानते थे कि खुदावंद की क्या कदर है, उसकी बातों की कदर है, बच्चों में वो डालेंगे तो होगा। डैडी ने हमेशा, और एक और बात हम घर में बात कर रहे थे आज, कि डैडी ना टैलेंट स्पॉट करने में बड़े माहिर है, हर किसी का टैलेंट स्पॉट कर लेते हैं। उनको डैडी और एडवर्ड भाई थे अकेले, इनको भरोसा था कि मैं एक पास्टर बन सकता हूँ। मुझे होता था कि यार नहीं, बहुत बड़ा काम है। मुझे डैडी और एडवर्ड भाई ने थे पहले, ये लोग जो मुझे बोलते ये पास्टर बनेगा, आप चर्च करो, हम आपके पीछे, हम आप चर्च करो, हम आपके पीछे, ये दोनों पहले थे। डैडी का मिस्टर होते किसी के जो है मॉर्निंग का वर्शिप में आगे बचपन से मॉर्निंग बेचारी की अभी तक इसकी जान निकली होती है। मैं इसको रोज कहता हूँ, ये गीत गाना है, आपको ऐसे करना, आपने इस तरह गाना, सोलो गाना या किसी के साथ गाना। उसको होते हैं मैं मेरी जान छूटे, मैं सबके साथ करूं, ग्रुप के पीछे छुप के गाते। डैडी ने हमेशा कहा कि ये एक लीडिंग सिंगर है। उसका नैना का हमेशा डैडी को पता था कि ये लीडर है, ये लीडर की तरह बोलेगी, ये लीडर की तरह करेगी तो काम होगा। डैडी हमेशा सबके जो टैलेंट है वो स्पॉट किए। इवन भाई को भी जब बिजनेस रेट आता है, भाई कहते मैं जॉब करने में कंफर्टेबल है, नहीं बिजनेस माइंडेड हो, मुझे तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि पता है मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ। मैं जॉब के मैं सैलरी पे रहने वाला इंसान हूँ, मैं 9 to 5 जॉब करूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं नहीं हूँ कि मैं इनिशिएटिव लेके करूँ कि भाई अब मैं बिजनेस में क्या करूँ। भाई का दिमाग बिजनेस माइंडेड रहने की तरह, वो जानते थे उतने बार नहीं, आप निकलोगे बेटा, देखना आप कितना सक्सेसफुल होगे, आप निकलोगे तो कितना सक्सेसफुल। और यही हुआ, जब निकला 6 महीने क्या थे, वो भाई तो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। हम सब कहते हैं कि वाकई भाई ने बहुत स्टैब्लिश किया करना। लेकिन ये होता है कि किसी को थोड़ा सा पुश देना पड़ता है, किसी को कुछ ना कुछ करना, ये बात का काम है। तो कॉर्नरस्टोन जो खुदावन ने बनाया, जो कॉर्नरस्टोन जो खुदा ने बनाया, खुदावन भी यही चाहता है कि जिस बाप ने आपको बनाया आप उस बाप की तारीफ करें, खुदावन के नाम के। खुदावन जो तुमने मेरे बाप से वादे की तो मेरी जिंदगी पूरे कर। जो खुदावन ने वादे दाऊद से वादे क्या किए, खुदावन ने कवरेंट क्या बनाया था कि मैं तुझे तेरी कौम से अपना वादे का फर्जंद निकालूंगा, तेरा जो बेटा होगा वो आगे मेरी हैकल बनाएगा, तेरे फर्जंदों को मैं बहुत ब्लेसिंग दूंगा, तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें वो दूंगा। हर चीज खुदावन ने उसको यूं दी थी। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे सिर्फ वर्शिप की, उसको सर्व किया। दाऊद सिर्फ वर्शिप करता ना था, दाऊद कौम इस्राइल का बादशाह था। He was the commander of इस्राइल कौम का। एक एक चीज खुदावन ने उसको इसलिए दी क्योंकि उसने भी कुछ किया। When you serve God, when you know कि खुदावन ने हमारे नामों पे, हमारे दिलों पर खुदावन ने गुदा का उसका कलाम, ये कलाम मैंने शेयर करना है। ये कलाम एडवर्ड भाई और लाजा और दिया को चर्च लाते हैं। अभी से जो ये सुनते हैं, अभी से जो ये समझते हैं, वो जिसको मैं काम करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी था, मैं एक स्टोरी पहले भी शेयर कर चुका हूँ। एक NFL प्लेयर है जिसको बचपन में जो वो एक एथीस्ट खाना में पैदा हुआ, बिल्कुल एथीस्ट, कलाम नहीं जानता था। वो एक्चुअली उसकी फैमिली कलाम से नफरत करती थी, वो कलाम को नहीं पसंद करते थे, क्रिश्चियन से नफरत करते थे और कहते क्रिश्चियन हिपोक्रेट होते। आई डोंट नो पीछे कुछ हुआ होगा, ये स्टोरी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को गेम खिलाना क्रिकेट उसका इंटरेस्ट था। अब एक दफा वो इतना कंपेरेटिव था लड़का कि उसको एक दफा वो कहीं गया स्कूल में या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वहां गया, तो उसको एक कंपटीशन था जहां पर एक बड़ी ट्रॉफी थी और सारे के नाम था कि अगर जो कलाम की ज़बूर याद करेगा ना, तो 15 ज़बूर थे या 13 ज़बूर थे याद करने, और जो याद करके सुनाएगा उसको ये नाम मिलेगा। वो इतना कंपेटिटिव था कि उसने 2 रातों में 15 या 16 ज़बूर थे वो सारे याद कर लिए, वो सारे याद कर लिए जस्ट टू विन द कॉन्टेस्ट, कि चलो करके मैं नाम तो जीतूं। उसने जब कॉन्टेस्ट जीत लिया तो उसके हिफ्ज हो गए, कलाम उसके हिफ्ज हो गया। 15 साल बाद जब वो 30 साल का हुआ, NFL में जब वो खेल रहा था गेम, तो उसको इतनी बुरी इंजरी हुई कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसको जब ऑपरेशन टेबल पे वो था और उस पर ऑपरेशन किया जा रहा था, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो बिल्कुल ठीक होने से क्या हुआ, मैं कैसे एकदम से ठीक हूँ, मिरेकल हुआ। डॉक्टर का मिरेकल है ये हमारे ऑपरेशन से नहीं हुआ, ये किसी और वजह से नहीं, ये मिरेकल हुआ है। मैंने बोला क्यों? क्रिश्चियन हॉस्पिटल था ये। उन्होंने बोला क्योंकि जब ये ऑपरेशन थिएटर में था, इसको हल्की की होश आती थी और ये खुदावन का कलाम बोलना शुरू करता था, ये ज़बूर पढ़ना शुरू करता था। उसको पता भी नहीं था, उसे कलाम छोड़ भी देता, लेकिन ये है खुदावन के जिंदा कलाम की ताकत, ये है उसके कलाम की कुदरत। जो भी बोएंगे सो हम काटेंगे, कुछ भी आप कर लो। ये कलाम जिंदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई मतलब ये रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी। उसके बाद उसने खुदावन को कबूल किया और अब वो खुदावन को सर्व करता है। मुझे अब सॉरी मुझे नाम नहीं आ रहा, शकील ओनियल नो, हाँ, मुझे नाम नहीं आ रहा, बिल्कुल नाम नहीं आ रहा, मुझे पता है। शकील ओनियल नाम है इसका। बैक टू
तो दाऊद के बाद किस्से वाले पूरे हुए सुलेमान बादशाह से। मैं अक्सर कहता हूँ कि सुलेमान बादशाह में ऐसी क्या खास बात है, कोई मुझे उसकी खूबियाँ बताए तो शायद गिनती की होगी 2 या 4 या 5 भी। उसकी अच्छाई क्या थी कि बहुत हिकमत वाला था, खुदावंद से हिकमत मांगता था, खुदावंद देता था। क्योंकि उसके करने की वजह से नहीं, क्योंकि उसने गैर कौमों में शादियाँ की, उसने खुदावंद के खिलाफ उसे टेंपल बनवाए जो खुदावंद को सख्त नफरत थी। खुदावंद चाहता ही नहीं था कि उसकी कौम में उसका बादशाह टेंपल्स बनवाए किसी और खुदा के, किसी और बुद्ध के। खुदावंद चाहता ही नहीं था कि गैर कौमों में वो शादियां करता कि उसकी, क्योंकि खुदावंद जानता था कि मैंने इस नस्ल का बेटा भेजना है। खुदावंद पहले से जानता है कि इस नस्ल मेरा बेटा ना, तो मिक्स नस्ल से मेरा बेटा आएगा तो मेरी नस्ल खराब हो जाएगी। तो खुदावंद ने उससे क्या कहा कि क्योंकि तूने ये गुनाह किया, क्योंकि तूने हरमे और अपनी शहजादियों को किया, क्योंकि तूने लौंडियां की, क्योंकि तूने गैर कौम में शादी की, क्योंकि तूने बेल की पूजा की, क्योंकि तूने टेंपल्स बनाए, तेरा दिल मेरे से मुड़ा, मैं क्या करूंगा? किसी को पता है खुदा ने क्या कहा था, मैं क्या करूंगा? कॉन्सिक्वेंस क्या था उसका? टेस्ट हो रहा है खुदा ने क्या करना, सजा क्या थी उसकी सुलेमान की? कि सिर्फ एक कबीला रह जाएगा उसके पास, बाकी सब ले लूंगा। खुदा ने कहा कि 12 कबीलों में से 12 कबीले जो अभी हैं उनमें से मैं तुझे सिर्फ तेरी औलाद को सिर्फ एक कबीला दूंगा। जो 12 कबीले खुदावंद के वादे के कबीले थे, जो उसकी कौम के कबीले थे, जो उसकी आंख की पुतली थी, खुदावंद ने कहा ये सारे कबीले मैं तेरे नौकर को दूंगा और एक कबीला सिर्फ तेरी औलाद को जाएगा। वो भी क्योंकि तेरे बाप ने मुझे सर्व किया, तेरे बाप ने मेरे से दिल लगाया, तेरे बाप ने मेरी खिदमत की, तेरे बाप के वादे की वजह से मैं तुझे थोड़ी ब्लेसिंग दूं। कभी कभी हम लोग ब्लेसिंग के अंडर होते हैं, हम समझते नहीं कि हमारे बाप दादा की ब्लेसिंग जो आ रही है, जो हमें फॉलो करी है, थोड़ी सी लेकिन फॉलो जरूर करती है। लेकिन टू मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल वी शुड नो कि खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की मामूरी में, खुदावंद के कलाम में, अंडर हिज लॉ, अंडर हिज वर्ड वी हैव टू स्टे स्ट्रांग। और जानना है कि जो हमारे बाप दादा ने किया वो हमने भी करना है। खुदावंद सुलेमान को बार बार बोलता था कि तूने गुनाह किया, मगर क्योंकि तेरे बाप दाऊद ने ये किया इसलिए मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तेरे बाप दाऊद ने फलाना किया इसलिए मैं तुझे दूंगा। खुदावंद हमें याद कराते हैं कि तुम्हारे बाप दादा को तुम याद किया, तुम जानो और पहचानो कि तुम्हारे बाप दादा ने जो तुम्हारी जिंदगी में किया था वो कितना जरूरी है, तुम भी यही करो। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा जरूरी है कि फादर्स डे होना क्यों जरूरी। फादर्स डे एक्चुअली इतना पुराना हॉलीडे नहीं है। फादर्स डे 50s में हुआ था जब मदर्स डे किया गया वेस्ट वर्जीनिया में। तो फादर्स डे एक और आदमी ने कहा कि औरतों का दिन मनाया जाता है, तो अगले महीने उसने कहा कि हम मदर्स डे भी करेंगे। वेस्ट वर्जीनिया में दोनों मदर्स डे एंड फादर्स डे सेलिब्रेट किए गए पहली दफा 50s में। तो इतना पुराना नहीं है, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। द रीजन व्हाई इज बिकॉज पेरेंट्स आर द एपिटमी, दे आर द इमेज, दे आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर हाउसहोल्ड। और वो इमेज है किसी खुदा की विद अथॉरिटी। We have to understand. मैं अक्सर हंसते हैं आपको रामदेव को तंग बहुत करता है, ये बात करता है कि मॉम जान के करता है, इसको पता है, he knows better, जान के करता है कि मॉम कह रहा है कि get piercing, तो वो रामदेव हाँ वो तब जाती है फिर उस पे, तो उस रामदेव मजाक कर रहा है, कहती है मुझे तंग ना किया गया, वो तंग बार बार करते हैं, लेकिन उसको वो माँ को फ्रेंड की तरह मजाक करते हैं, which is fine, हम भी करते हैं माँ को तंग होता है, तंग करते हैं। लेकिन मैं माँ को सोचा था कि हम लोग अक्सर भी लाइफ में कभी कैसी कैसी बातें करते हैं जो अपने माँ को हम परेशान करते हैं, जो माँ को दुख देते हैं या कोई गलती करते हैं, माँ का दिल दुखता है कि मैंने जब समझाया था क्यों इस तरह से किया। मैं घर में माँ से कहता था खुदावन कितना अनॉय होता होगा हमसे कि जब मैं इनको कुछ कहता हूँ कि ये करना है, वो ये नहीं कुछ और करते हैं, फिर इब्लीस की बातों में आते हैं। मैंने इनके इर्द जब बाढ़ लगाई है, ये बाढ़ से बाहर क्यों जाते हैं, ये क्यों बार बार गुनाह में पड़ते हैं, मैं फिर इनको ठीक करता हूँ। खुदावन आदम के जमाने से आज तक हमें ठीक करता जा रहा है, करता जाएगा, करता रहेगा, लेकिन खुदावन की भी एक लिमिट है। खुदावन ने कलाम में लिखा है, मत्ती 25 बाब में लिखा है कि खुदावन खुदा यीशु मसीह दुल्हा देर करता है, दुल्हा देर कर रहा है ताकि कलीसिया उसकी दुल्हन तैयार हो। हमारा बाप देर कर रहा है क्यों? ताकि हम लोग गुनाह से माफी मांगे। यीशु मसीह जब सलीब पर था वो लानत बड़ा, बेटा लानत बना, बल्ला बना, तब वो एक बाप की हैसियत भी रखता था यीशु मसीह, क्योंकि उसके खुदावन का रूह भी था। और उसने भी तब क्या किया, हमारा बोझ अपने ऊपर उठाया। बापों में नेचुरल बात आती है, हमारा बोझ अपने ऊपर उठाते हैं। अभी भी डैडी में परेशानी में मुझे पड़ जाए ना, बेशक डैडी मुझसे नाराज हो या जो भी हो, परेशानी पड़ जाए, सबसे पहले मुझे पता है कि डिपेंड ऑन यू, मैं इनसे बोलूंगा मुझे बाहर निकालेगी, क्योंकि अभी भी वो जानते हैं कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो हिकमत है, जो ताकत है, जो उनको खुदावन ने दिया है, वो यूज कर सकते हैं। खुदावन ने याकूब को के घराने में
कितने बेटे थे याकूब? 12 कबीले, 12 बेटे, 12 बेटे थे याकूब के। लेकिन उनमें से एक राजबाज था जो सच में खुदावन का दिल रखता था, जो सच में कंपैशन रखता था, जो सच में जानता था कि खुदावन की वैल्यू क्या है, और खुदावन ने उसे सरफराज किया। मगर खुदावन यीशु मसीह के नस्बनामे में किसका जिक्र है? यहूदा। क्यों? क्योंकि यहूदा ने अपने गुनाहों की माफी मांगी, बेशक पकड़े जाने के बाद ही मांगी, मगर उसने दिल में माफी मांगी, और उसके बाप ने, उसके भाई ने उसे माफ किया। ये ऐसे दिल खुदावन चाहता है, ऐसे दिल चाहता है कि हम गुनाह तो करें, क्योंकि कलाम में लिखा है जो मसीह को कबूल कर लेता है वो गुनाह करता नहीं रहता। इस मतलब ये नहीं कि हम गुनाह नहीं कर सकते या गुनाह नहीं करते रहते, इसका मतलब ये है कि हम जाने और पहचाने, और मैं मर्दों की बात करूं, हम जाने और पहचाने की, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें आती है, अंबिया की भी जिंदगियों में आजमाइशें आई है, मगर हम जाने कि ये हमारी लिमिट है, हमने फोकस रहना है, खुदावन को प्रायोरिटी देनी है। और मैं जब अगर मैं किसी लड़की को भी बुरी नजर देखूं, मैं बोलूं खुदावन मुझे माफ कर, ये मैंने गलती की है, मैं जानता हूं मैंने की है, लेकिन उसी वक्त खुदावन हमारी पोशाकों को नाम लेके धोखे साफ कर देते हैं। हमारे पोशाक को धोखे साफ कर देते हैं। हस्बैंड का घर में एक इमेज होना चाहिए जो आपके बच्चे उठ चुके हैं कि ये सच में खुदावन की छवि है। जैसे मैं बड़े प्राउडली कहता हूं खुदावन की छवि मेरे घर में है। क्यों? क्योंकि डैडी ने खुदावन का नाम मुझ में डाला, खुदावन का रूह मुझ में डाला। किससे आया? बाप की वजह से आता है। माँ मददगार है, बीवी मददगार है, फिर बोलूंगा बीवी मददगार है। अथॉरिटी किसकी है? हस्बैंड की। हेल्पर और अथॉरिटी में आसमान जमीन का फर्क है। ये नहीं कि अमेरिका में हम सब इक्वल हैं, जिस्मानी तौर पर भी इक्वल नहीं है, लेकिन हिम्मत के तौर पर भी इक्वल नहीं, क्योंकि खुदावन ने अथॉरिटी दी है हस्बैंड को। मैं लड़कियों से कह रहा हूं अथॉरिटी खुदावन ने दी है, अथॉरिटी खुदावन ने दी है, क्योंकि ये मियां का जो रोब है वो खुदा का, तू कलाम में क्या लिखा है? तू सर उसका, मसीह सर तेरा। कलाम पहले करंथियों 11 बाब में लिखा हुआ है, 11 बाब में लिखा हुआ है कि औरत क्यों चर्च में दुपट्टा पहने? खुदावन की दुआ में जब आती है तो वो दुपट्टा क्यों पहने? क्योंकि फरिश्तों के लिए। अब ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। बहुत से खातिन कहते हैं कि फरिश्तेगान पर बुरी नजर रखते हैं, ये बिल्कुल घटिया और गलत बात है। फरिश्तेगान जो इतने पाक है, जो खुदावन की हुजूरी में रहते हैं, वहां पे क्यों बुरी नजर रखेंगे? इसलिए नहीं कहा गया, इसलिए कहा गया ताकि फरिश्ते हमें देखकर सीखे कि खुदावन की तारीफ और ताज़ीम कैसे की जाती है। औरतों के लिए क्यों कहा गया सेपरेट दुपट्टा? मर्द क्यों ना ले, बल्कि इसराइल को हम लेते थे, मर्द दुपट्टा लेते थे। क्या बहुत डिफरेंस क्या है? क्योंकि अब क्योंकि खुदावन यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, मर्द जो है वो खुदा का जलाल है, औरत जो है वो मर्द का जलाल है। स्टेजेस है। बाप खुदा, यीशु को हम फिर बाप कहते हैं, बाप बेटा जो मर्द है घर का, और फिर औरत का जो लेवल है ये वो मददगार है, वो साथ साथ है। मगर खुदावन यीशु मसीह ने ये कि जिस तरह मोहब्बत की कलीसिया से, वैसे हमने मोहब्बत करनी। ये मैं नहीं कह रहा कि अपने डॉन बन के रहना है या गुंडे बन के रहना है घर में, नहीं, मार धार करनी है, लड़ना है, नहीं, मोहब्बत से रहना है। जिस तरह खुदावन माफ करते हैं, हमारी गलतियां हमने भी माफ करनी है। द कंपैशन दैट वी हैड लास्ट टाइम में बात की थी उस औरत की 2 संदेश पहले, जिसको औरत को खुदावन ने देखी, उसको गुस्सा नहीं आया खुदावन, क्योंकि ये मियां होते हुए, बच्चे होते हुए ये गुनाह में पकड़ी। खुदावन ने क्या कहा? खुदावन ने उसको देखकर उसका दिल कंपैशन से भर गया। खुदावन ने लिखा है हिज हार्ट वाज फिल्ड विद कंपैशन। ऐसा दिल, ऐसी रूह मर्द में होनी चाहिए, और ये रूह मैं अपने बाप में देखता हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि वो सच में हमारी जिंदगी में खुदा की छवि है। कोई परफेक्ट नहीं है, अंबिया भी परफेक्ट नहीं थे, दाऊद परफेक्ट नहीं था, सुलेमान परफेक्ट नहीं था, इब्राहिम परफेक्ट नहीं था, अय्यूब भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुदावन से झुके थे, खुदावन की इमेज को, खुदावन की अथॉरिटी को वो जानते थे। That's the authority that we must have for our children, and we as children must respect that authority. जैसे हम खुदावन के सामने फजूल लोग नहीं बोल सकते, वैसे हम बाप के सामने we have to know our limits, we have to know our direction, we have to know the image that God has put on them. वो जैसे मर्जी हो, we should know where we stand. जो बीवी अगर हेल्पर है, बच्चे तो कहीं किसी गिनती में नहीं आते। नूह ने मैं आशिफ भाई के साथ ही शेयर कर रहा था बात। नूह ने जब शराब पी ली, बहुत वो मतवाला हो गया। जब वो शराब पी के वो कपड़ा सो रहा था, वो नंगा था, या उसके कोई बॉडी पार्ट नंगे थे, कलाम इज नॉट क्लियर होता है। तो उसके बेटे ने आकर उसका मजाक उड़ाया, दूसरे भाइयों को बताने गया तो उनके भाइयों ने आकर उसको कवर कर दिया। लेकिन खुदावन ने, क्योंकि जब उठा तो उसने लानत की कि उस बेटे पर, उसकी बेटे की कौम जो आएगी उस पर लानत की, और वो लानत ऐसी पड़ी कि मुल्क केनान को, जो खुदावन ने मुल्क केनान था, वो उस बेटे का शहर था, वो उस बेटे की कौम थी, वो उस बेटे की नस्ल थी। खुदावन ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया और इसराइल कौम को बोला कि ये मुल्क केनान जहां दूध और शहद की नदियां बहती है, यू विल टेक ओवर दैट लैंड।
اور اسرائیل قوم نے جا کے they took over and they were to rule over the land. ساری برکتیں خدا نے اس کو لینڈ بھی دیا اس کی قوم کو، مگر خدا نے وہ بھی سے چھین لیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف اپنے باپ کا مزار پڑھایا یا اپنے باپ کے بارے میں جو کچھ بھی اس نے کہا. کلام کلیئر نہیں ہے اس اسٹوری کی بہت سی تھیولوجیز کے بارے میں، لیکن that's another chapter. جب ہم جانتے ہیں کہ باپ خداوند کی اتھارٹی کیا ہے، we should know the authority of our father. کلام میں یہ نہیں کہا کہ رسپیکٹ کرو، جیسے تمہارا باپ اگر یہ کرے then you respect him. نہیں، کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا باپ جیسا مرضی بھی ہو، تمہاری ماں جیسی مرضی بھی ہو، تم نے اس کی عزت کرنی ہے جیسے تم خدا کی کرتے ہو، جیسے خدا ہے. بیوی نے خدا سمجھا تو ہم نے تو بالکل ہی خدا بالکل واقعی خدا سمجھنا ہے. اگر بیوی کے لیے وہ مسیح سر ہے نا تو ہمارے لیے بالکل واقعی خدا ہے. ایمان. باپ کی اتھارٹی ہم نے بھی سمجھ لی ایک ایک زندگی میں. باپ کی میں فیتھ کو دیکھتا ہوں کہ she misses the love and the affection of her father. آج بھی اس کے باپ کا فون آیا تھا، اس سے اسکائپ کر رہا تھا. it's troubling for me کیونکہ میری زندگی میں کمی نہیں ہے، ہماری زندگی میں کمی نہیں رہی. اس کی زندگی میں جب کمی میں دیکھتا ہوں چیز اس کے سب کچھ ہے، ہم ہوں، بھائی ہے، ڈیڈی ہے، بھائی ہے، we all very close to her, we love her. لیکن ایک بات ہے جو اس کا biological father اس سے missing ہے. that's the thing that she misses. ہم اس ایگزامپل کو دیکھ کے ہم we take ours for granted کیونکہ ہمارے پاس ہے. we should know کہ اگر ہم ایسے ہوتے تو یہ اچھا تھا ہمارے لیے، یا جو باپ کا سایہ ہمارے سر پہ تھا وہ بہتر تھا. ہمیں سمجھنا ہے کہ باپ کی سایہ جو ہے ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور وہ آخری دم تک، آخری موقع تک جو وہ بلیسنگ دے گا وہ پروسپر کرے گا. جب آئزک نے، اسحاق نے اپنے بیٹوں کو بلیسنگ دی تو ان کی بلیسنگ سوئچ ہو گئی، لیکن وہی خدا نے دی جو اس نے اپنے منہ سے نکالا. باپ کی یہ اتھارٹی، جو باپ نے اپنی برکت یا لعنت اپنے منہ سے نکال دی ہے وہ ضرور ہوگا، لیکن یہ ہے کہ باپ کے دل کو خدا کے دل کی طرح کتنا ہم خوش کرتے ہیں. آئیے